Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what you're this. doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो होनी तो थी बातचीत और बड़ी बातचीत, कुछ डील भी होनी थी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप दोनों विवाद में हैं और विवाद एक वीडियो के जरिए है। We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. ये विवाद किस तरह से हुआ दोनों के बीच में, ये विवाद दोनों देशों के बीच में कैसे हुआ, ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में कैसे हुआ, वेंस की इसमें क्या भूमिका रही, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, बुलाया तो गया था कि युद्ध विराम होगा, शांति होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बड़ी डील होगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, ये पहली बार हमने देखा कि इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने कोई देश का प्रतिनिधि जाता है और वहां पर इस तरह से तू मैं होती है। देखिए, इस समय इंटरनेशनल मीडिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो बहस हुई कैमरे के सामने, व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में। इससे पहले हमने कभी इस तरह ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये पहली बार है ऐसा जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति की किसी देश के प्रमुख के साथ इस तरह से बात होती है। Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. If you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. And your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now. But you will feel it
in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden, he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. देखिए जेलेंस्की जब मिलने पहुंचे थे, कुछ इसकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं। जब जेलेंस्की मिलने पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद बाहर जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उस वक्त मीडिया से कहते हैं ये आज अच्छे से तैयार होकर आए हैं। आप देखिए, पहली बात तो जेलेंस्की जिस ड्रेस में मिलने पहुंचे थे, ये वही ड्रेस है जो यूक्रेन में वॉर के दौरान वो कई जगह दिखाई देते हैं। बिल्कुल। आज के पहले आपने शायद ही किसी को कभी देखा होगा कि एक वॉर ड्रेस में कोई देश का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। तो ये तो अपने आप में, अब ये ट्रंप का कमेंट था या उन्होंने इस बात को मतलब नोटिस किया कि भाई ये तैयार हो क्या है। जनरली जब भी जाते हैं, अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो उनको देखा है सूट बूट में बिल्कुल तैयार तो ये तो वॉर ड्रेस में जेलेंस्की पहुंच गए थे, पहली बात। दूसरी बात जो है, जब इनकी बातचीत शुरू हुई तो उस दौरान जेलेंस्की ने जो है वो युद्ध विराम का सीज फायर का विरोध किया। जब बातचीत शुरू हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं चाहिए। ये बात जेलेंस्की ने कही, जिसके बाद रिएक्शन में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो उन पे भड़क जाते हैं। आप देखिए, इस पूरी बातचीत के दौरान जेलेंस्की को बहुत कम बोलने दिया ट्रंप ने। जैसे ही जेलेंस्की कुछ बोलना शुरू करते थे, ट्रंप जो है उनको चुप करवा देते थे। तो ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आपको, हमने जो आपकी मदद की है उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। जेलेंस्की से उन्होंने ये भी कहा कि डील करने की स्थिति में आप नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी शर्तों पे कोई डील हो जाए तो आप अभी इस स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ट्रंप ने कही कि आप तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना के साथ जुआ खेल रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के साथ। ये बड़ी तो बात, ये एक बड़ी बात थी। और या तो आप डील करें, ट्रंप ने साफ कहा, या तो आप डील करें और या फिर हम इस समझौते से बाहर हो जा रहे हैं। तो देखिए, आप कई मौके पे ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और जिस तरह से जेलेंस्की अपनी बात पे अड़े हुए थे, उसका नतीजा था कि ये पूरी जो चर्चा जिस तरह से एक प्रकार की बहस में बदल गई। वैसे उपराष्ट्रपति जो हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा कि ओवल ऑफिस आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखना और हम पर दबाव बनाने की कोशिश करना ये अपमानजनक है। जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने ये बात कही। तो और कहते हैं कि जब वो बातचीत, शुरुआत के 30 मिनट तो ठीक ठाक बातचीत चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन जो 10 मिनट बाद की बातचीत थी उसमें वेंस के कूदने के बाद ही इस तरह से स्थिति। देखिए, जेडी वेंस ने जो कहा उसके बाद जो है जेलेंस्की ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने पूछा क्या आप यूक्रेन गए हैं वहां की समस्याओं को देखने के लिए? इस युद्ध का अमेरिका पे भी असर होगा। तो उसके बाद जो है ट्रंप ने कहा कि हमें मत बताओ कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, तुम हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हो कि हम क्या महसूस करेंगे, हम बहुत मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हैं। तो देखिए, जो जेलेंस्की जो है वो अपनी बात पे अड़े रहे। तो देखिए, ये जब चर्चा शुरू हुई उसके बाद जो है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि देखिए, कभी भी क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो क्या बात होगी, किन मुद्दों पे बात होगी, ये पहले से तय हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप मीडिया के सामने जाके रैंडमली आप कोई बात शुरू कर दें। लेकिन इससे तो देखिए नीलू, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इस तरह से भी कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरा मामला जो था ये फिक्स था। ये मीडिया को एक प्रकार से ये दिखाने की कोशिश थी कि हमने जेलेंस्की के ऊपर दबाव बना रखा है और हम शांति चाहते हैं। तो ये कितना एक प्रकार का इस तरह के भी विचार चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। लोग इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि कहीं ये फिक्स तो नहीं था। बिल्कुल, ये फिक्स नहीं था। इससे पहले भी ब्रिटेन के भी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो हमने देखा वो भी ओपन मंच पे ही सारे पत्रकार बैठे हुए थे, सवाल बहुत सारे किए गए। एक चिट्ठी लेकर आए थे वो और उन्होंने ट्रंप को दिया और फिर कहा कि आपका न्योता है। तो ट्रंप ने कहा क्या मैं इसको अभी खोल लूं, फिर पढ़ लूं। तो ये सारी चीजें क्या बताने की कोशिश हो रही है? सोशल मीडिया और जानकार ये भी कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति की तरह डील नहीं कर रहे हैं।
अब ये एक बिजनेसमैन की तरह, हाँ ये एक चीज, हाँ ये चीज चल रही है, लेकिन फिलहाल तो रूस के साथ तो ये डील मिनरल्स वाली नहीं हो पाई, जो जिसकी ट्रम्प पे नजर है। इसका आगे क्या होगा पता नहीं। इस बात के बाद जेलेंस्की क्या अपना रुख बदलेंगे, तो अब ये इस बातचीत के बाद अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होता है, क्या कोई समझौता होता है, क्या मिनरल डील होगी, जेलेंस्की कितना झुकते हैं, ये देखने वाली बात। आगे अब किस तरह से ये बातचीत बढ़ती है, क्या कोई बीच का रास्ता ट्रंप निकाल पाते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।